We thank you for this beautiful morning. We thank you for your presence in this place. We thank you, Lord, that you're going to speak to us afresh. We thank you that we will go out of this place with our hearts revived, our bodies strengthened, and our souls refreshed, oh God. We give you all the praise. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Please be seated. सभी बैठ जाएं. It's a great honor to be back in ARH one more time and to see all of your wonderful faces. एक और बार ARH में आपके साथ आपके खूबसूरत चेहरों को देखने मुझे मिल रहा है. मेरे लिए बहुत ये आदर की बात है. I'm so blessed to see how this church is on fire all the time. मैं कितना आशीषित होता हूँ ये देखकर कि ये कलीसिया निरंतर आग से भरी हुई रहती है. I've never seen this church cold. मैंने इस कलीसिया को कभी ठंडा देखा नहीं है. Come on somebody. You have this nature of stirring yourself up when you come into the presence of God. और आपके अंदर ये एक स्वभाव है कि आप अपने आप को तैयार करके परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो. And I celebrate, I thank God for that nature that you have. और ये जो आदत है आपके अंदर उस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. And I also pray that those of the people that come new to church, they will immediately catch that fire. और मेरी प्रार्थना यह है कि वे लोग जो नए इस कलीसिया में आएंगे वो तुरंत इस आग को पाएंगे. That they don't have to wait for 2 years to catch the fire that took you 2 years. और जिस आग को पाने के लिए आपको 2 साल लगे उतना नए लोगों को समय नहीं लगेगा. That when somebody comes into this house, somebody tunes in online on Zoom or YouTube, wherever they listen to the word, I pray that they will catch the same anointing, the same grace that is upon this house. और जब कभी लोग इस कलीसिया के संग जुड़े, फिर वो ऑनलाइन हो, जूम के माध्यम से, कि जो आग यहाँ पर है, लोग उस आग को जहाँ कहीं वो जुड़ रहे हैं वहां से पा सकेंगे. And I do believe that the nature, the character that each and every one of you have is a testament, it's a testimony of how your parents in the Lord, they are walking with God. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो आग आपके अंदर देखने को मिलती है या जो चरित्र इस कलीसिया का है, वो इस बात का गवाह है कि परमेश्वर ने जैसे आपको अगुवे दिए हैं, वो उस बात का गवाह है. The way that they walk with God and the way that they serve God, it has to flow down into the rest of the church. जिस रीति से आपके अगुवे परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो बातें जो है आपके अंदर बहना लाजमी है. And that is why we should never take our pastors for granted. और इसीलिए हमने कभी हमारे जो पास्टर्स हैं उनको हल्के तौर पे नहीं लेना है. That is why we should never burden them with unwanted responsibilities. इसीलिए कभी ऐसी जिम्मेदारियां उन पर नहीं डालनी है जो डालने की जरूरत नहीं है. That is why you should not make them waste their prayer time praying for unwanted things. इसीलिए आपको उनका प्रार्थना का समय ऐसी चीजों के लिए बर्बाद नहीं कराना है जिनके लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है. Let them pray for revival. उनको बेदारी के लिए प्रार्थना करने दो. Let them pray for the fire of God to burn in the church. उनको प्रार्थना करने दो कि परमेश्वर की आग कलीसिया में बहती रहे. In the first century church, the apostles of the first century church, they came together and they said, you can take over all the other work. We will do only 2 things, which is to teach the word of God and to devote ourselves to prayer. पहली सदी की कलीसिया जो थे, वहां के जो अगुवे थे, उन्होंने ये बात कही कि तुम बाकी सारी जिम्मेदारियां आपस में बांट लो, हम केवल 2 चीजें करेंगे. हम प्रार्थना में समय बिताएंगे और वचन की सेवा में हम समय बिताएंगे. And that's not because there was no one else anointed in the church. Even the servers in that church was very anointed. और ऐसा नहीं था कि दूसरे लोग सेवा करने के लिए उपलब्ध नहीं थे. जो लोग मेज पर सेवकाई करते थे, खाना वगैरह परोसते थे, वे लोग भी बहुत अभिषेक्त थे. Even they moved in signs and wonders. वे लोग भी चिन्ह और चमत्कारों में कार्य करते थे. But the Bible says that the apostles were not expected to do anything except praying and teaching the word. मगर बाइबल ये कहती है कि प्रेरितों ने केवल प्रार्थना के लिए और वचन की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित किया. Can you imagine our church is growing to a stature where we don't have to burden our men of God with anything else but to teach the word and to pray? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी कलीसियाएं उस स्तर पर पहुंचे जहां हम अपने पास्टर्स को, अपने अगुवों को किसी और चीज का बोझ न दे, बस ये जिम्मेदारी कि वो प्रार्थना करे और
वचन हमें सिखाए। That sounds like an apostolic church. और वो जो है एक अपॉस्टोलिक कलीसिया का चिन्ह है। That is how an apostolic church needs to function. और एक अपॉस्टोलिक कलीसिया इस रीति से ही काम करती है। So I pray that each and every one of you would make your pastor's job easier. और मेरी प्रार्थना आपके लिए है कि आप में से हर कोई अपने पास्टर्स का काम थोड़ा आसान करे। That you constantly keep looking for ways in which you can make it easy for pastor to come and minister week after week. कि आप हर बार जो है इस बात के ऊपर ध्यान देते रहें कि किस तरह मैं उनकी चीजों को जो है आसान करूं ताकि वो आके मुझे वचन सिखाएं। Amen. Amen. That being said, you have the best pastors in the world. They are like my favorite people to hang out with. आपके पास्टर्स मेरे बहुत सबसे ज्यादा पसंदीदा लोग हैं जिनके साथ मैं रहना अच्छा पसंद करता They हूँ। are the only ones who can manage to keep me awake post 12 o'clock. केवल यही लोग हैं जो 12 बजे के बाद भी मुझे जो है नींद नहीं लगने देते। And I really enjoy the close fellowship that we get whenever we get those days or moments when they come to Bangalore or we come here. We just enjoy, we cherish it to the most. और जब कभी वे बैंगलोर आते हैं या हम मुंबई आते हैं और हमें संगति करने का मौका मिलता है, हमें वो मौका बहुत सुंदर लगता है और हम उसका पूरा आनंद उठाते हैं। And I'm here very excited because we are in a very special season. We've been enjoying this cloud, this glory, this fire on a daily basis. और हम जो है बहुत ही एक सुंदर मौसम में है क्योंकि हम पिछले लगभग 40 दिनों से क्लाउड से जो है मीटिंग्स है उनका आनंद उठा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा का आनंद उठा रहे हैं। And I believe that, we don't need to be stirred to jump into the fire. We are already ready for fire. और मैं विश्वास करता हूं कि हमें आके किसी ने उत्तेजित करने की जरूरत नहीं है कि हम उस आग को महसूस करें। हम पहले से ही उस आग के अंदर जी रहे हैं। I'm so blessed by the way that my father has been leading us in this season into the fire on a daily basis, every day. The way that he walks in that realm and then he ushers us also into that realm. और हम कितने आशीषित हैं कि जिस रीति से हमारे आत्मिक पिता ने हमको इन दिनों में चलाया है, वो जिस माध्यम से चल रहे हैं, जिस स्तर पर चल रहे हैं, वहां से वो वचन लेकर आते हैं और हमें उस स्तर में वो लेकर जा रहे हैं। उस बात के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। Amen. So one of the mornings when I was listening to the services from Montreal, I started praying for ARH and God gave me one verse which I want to just teach and minister to you guys today. और एक सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन को मॉन्ट्रियल में जो प्रचार हो रहा था सुन रहा था, तब मैं ARH के लिए प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया आपके लिए जो मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूं और जो आपको मैं सिखाना चाहता हूं। This is from 1 Kings chapter 18 and verse 1. और ये पहले राजाओं का पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसका पहला वचन है। This story in 1 Kings chapter 18 is a very familiar story. और ये जो कहानी पहले राजा की पुस्तक में लिखा है बहुत ही जो है जाना माना ये कहानी है। And I just want to dwell on a few things from this story and I want us to jump into the fire and just pray together one more time. और एक और बार हम इस अध्याय को पढ़ेंगे, इस कहानी पर ध्यान देंगे और हम परमेश्वर की अग्नि को प्राप्त करेंगे। It says, after many days the word of the Lord came to Elijah. बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा। It says in the 3rd year, the word came saying, go, show yourself to Ahab, and I will send rain upon the earth. और वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेह बरसा दूंगा। What did the word say? क्या वचन कहता है? What was the word that God gave Elijah? एलिया को क्या वचन दिया गया? That you have to go and show yourself to Ahab. आपको जाकर अपने आप को आहाब के सामने प्रस्तुत करना है। And as a result of that, और उसके फल स्वरूप ये होगा that I am going to send rain upon the earth. कि मैं पृथ्वी पर बारिश भेजूंगा, मेह बरसाऊंगा।
there had to be a coming out for Elijah and showing himself to Ahab so that the rain can come down. एलिया के लिए यह जरूरी था कि वो बाहर आए और अपने आप को आहाब के सामने प्रस्तुत करे, और उसके कारण यह होने वाला था कि परमेश्वर स्वर्ग से बारिश भेजेंगे. See, you should understand the context is that Elijah had given a prophetic word to Ahab. और आपको ये बात समझना जरूरी है कि इस कहानी की शुरुआत वहां होती है जहां एलिया ने आहाब राजा को जाकर एक नबूवत का शब्द दिया था. And usually when you're ministering to somebody, you're hoping that they will become our friends or they will become our followers after that prophetic word is given. और ज्यादातर ऐसा होता है कि जब आप किसी को कोई नबूवत का शब्द देते हो, भविष्यवाणी का शब्द देते हो, अपेक्षा आप ये करते हो कि उस सेवकाई के बाद वो व्यक्ति आपका दोस्त बनेगा या वो व्यक्ति आपके पीछे चलेगा. If nothing else, he will at least think nice about me. अगर कुछ नहीं तो मेरे बारे में अच्छी बातें तो सोचेगा. But as the story goes, the Bible says that Ahab began to look for Elijah just to kill him. लेकिन हम जानते हैं कि उस भविष्यवाणी के बाद ऐसा हुआ कि आहाब मौका तलाश रहा था एलिया को मार डालने का. So Elijah's ministry towards Ahab didn't help in making Ahab a friend. It only turned him against Elijah. तो एलिया की जो सेवकाई थी आहाब के प्रति, उस सेवकाई के कारण आहाब उसका दोस्त नहीं हुआ, दुश्मन बन गया. And as a result of it, Elijah had to go into a season of hiding. और उस कारण ऐसा हुआ कि एलिया को जो है छिपना पड़ा जाकर. And God miraculously provided for him in that season of hiding. और जब वो छिपा हुआ था तब परमेश्वर ने जो है बहुत ही अलौकिक रीति से उसकी जरूरतों को पूरा किया. See, I don't know if Elijah has ministered and prophesied before, but this was the first public and the written prophecy about Elijah, that he went and prophesied to Ahab saying, until I tell you, there will be no rain or dew in Israel. और देखिए, हम नहीं जानते कि इससे पहले एलिया ने कोई भविष्यवाणी की थी या नहीं की थी, लेकिन पब्लिकली लोगों के सामने अगर उसकी सेवकाई का पहला भाग अगर कहीं लिखा है तो इस बात से शुरू होता है. And immediately after that, Elijah had to be hidden. और तुरंत उसके बाद एलिया को जाकर छिपना पड़ा. And in that season of hiding, God taught him a lot of things. और उस छुपे हुए समय में परमेश्वर ने उसको बहुत सारी बातें सिखाई. Because those things are recorded, those things are mentioned in scripture. और जो बातें परमेश्वर ने उसको सिखाई वो बातें दर्ज की गई हैं. The transformation that Elijah experienced in his mind, in his heart during that season is recorded. और जिस बदलाव का अनुभव एलिया ने उस समय में किया, उस दौरान किया, उन बातों को दर्ज किया गया है. And now God is telling him, और अब परमेश्वर उससे कह रहे हैं, now you don't have to give a prophetic word. तुझे जो है अब जाकर कोई नबूवत का शब्द नहीं देना है. Now you don't have to do another miracle. तुझे अब जाकर कोई चमत्कार नहीं करना है. Now you just have to go and present yourself to Ahab. तुझे अब जाकर अपने आप को केवल आहाब के सामने प्रस्तुत करना है. And just by you showing yourself to Ahab, something is going to shift over the heavens, over the nation. और जब तू जाकर अपने आप को आहाब के सामने प्रस्तुत करेगा, स्वर्ग में कुछ स्थापित किया जाएगा, कुछ चीजें होंगी. And as a result of you standing before Ahab, rain is going to come down from और heaven. क्योंकि तू जाकर आहाब के सामने खड़ा होगा, उसके फल स्वरूप ये होगा कि बरसात स्वर्ग से मुक्त की जाएगी. I don't know what you have been going through as a person, as a family, or as a church, but the Lord is asking some of you to come out of your hiding season and present yourself before your Ahab. और मैं नहीं जानता कि आप में से कौन व्यक्ति किस हालात से, परिस्थिति से होकर गुजर रहा है, आप कहां छिपे हुए हैं, मगर परमेश्वर आज की सुबह आपसे कह रहा है कि आपको अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आना है और अपने आप को आपके आहाब के सामने खड़ा करना है, प्रस्तुत करना है. See, being in hiding was not wrong for Elijah.
Elijah, that was the season appointed by God for him to be hidden. एलिया के लिए जब वो छिपा हुआ था कोई बात गलत नहीं थी, क्योंकि वो मौसम उसके लिए तय किया गया था परमेश्वर के द्वारा कि वो उस दौरान छुपा हुआ रहे. And in that season of hiding, God always teaches us something or the other. और जब हम छुपे हुए रहते हैं, उस मौसम में होते हैं, परमेश्वर हमेशा हमें कुछ सिखाते हैं. He transforms our character. वो हमारे चरित्र में बदलाव लेकर आते हैं. He transforms our relationships. वो हमारे रिश्तों में बदलाव लेकर आते हैं. He breaks our ego. वो हमारे अहम को तोड़ते हैं. For Elijah, he had to be fed by a raven and a widow. और एलिया के लिए उसका अहम कैसे टूटा? एक कौवे के मुंह से उसको खाना खाना पड़ा, एक विधवा के हाथ से उसको खाना खाना पड़ा. In fact, the widow was not even an Israelite. और वो विधवा जो थी वो इजरायली भी नहीं थी. That is the woman who took care of Elijah during the drought. और उस जो है सूखे काल के समय में उस विधवा ने एलिया को पूरे सूखे के समय खिलाया. All this while Elijah was fed by the harvest that came out of his land, but all of a sudden he had to depend on someone else for his food and his drinks. अब तक ऐसा हो रहा था कि एलिया की अपनी जमीन पे से जो उपज पैदा होती थी उसमें से एलिया की जरूरतें पूरी होती थी, लेकिन अब उसके खाने के लिए, उसके पीने के लिए उसे किसी और पे निर्भर होना पड़ रहा है. This Elijah that God is speaking to in 1 Kings chapter 18 verse 1 is a different Elijah from the one who prophesied in chapter 17 verse 1. देखिए ये 18वें अध्याय का जो एलिया है ना, ये 17वें अध्याय के एलिया से अलग है. ये एक अलग ही व्यक्ति है. This is a man who has gone through a process that God worked on him and that he allowed God to work on him. और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो एक ऐसे प्रक्रिया से होकर गुजरा है जहां परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया है. You know, some of us, we go into the hiding season, but we waste that season of hiding. देखिए हम में से कई लोग जो है ऐसे छुपने के समय से होकर गुजरते हैं, मगर हम उस मौसम को व्यर्थ कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं. We go into seasons where we have lack and then God provides from some ways, but we come out of those seasons more bitter than how we went into it before. हम ऐसे समयों से होकर गुजरते हैं जहां हमारे जीवन में कमी होती है, लेकिन परमेश्वर उस कमी के बीच में जरूरतों को पूरा करता है. लेकिन उस मौसम से जब हम बाहर आते हैं, कृतज्ञता या धन्यवादित होने से ज्यादा हमारे अंदर कड़वापन होता है. The transformation of character did not happen. क्यों? क्योंकि हमारे चरित्र के अंदर जो बदलाव होना था वो नहीं हुआ. See, the same Ruth and Orpah, they both were in the same house who were being accountable to the same woman of God. One woman turned out bitter, the other woman turned out faithful. देखिए एक ही घर में दो स्त्रियां थी जो एक ही परमेश्वर की दासी थी, उसके अधीनता में जी रही थी. रूथ और ऑर्फा जो है नेओमी के अधीनता में थी, लेकिन दोनों के चरित्र में फर्क था. एक धन्यवादित थी, दूसरे कड़वेपन से भरी हुई थी. So my question to you, church, is: are you ready for the showing forth that God is about to do in your तो life? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कलीसिया कि क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर जो है आपको प्रस्तुत करना चाहता है, आपको दिखाना चाहता है, क्या आप उस बात के लिए तैयार हैं? Now this time God is not even looking for a word that comes out of your mouth. God is just looking to show you off in front of people. और आज परमेश्वर जो है इस बार आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों पर भी निर्भर नहीं है. वो नहीं चाहता कि आप कुछ बोले, वो केवल आपको दिखाना चाहता है. See, everything that Elijah did in chapter 18, that was what he wanted to do. देखियो एलिया जो 18वें अध्याय में जो एलिया ने किया वो सब परमेश्वर जो करना चाहता था वही था. That was what he wanted to जो do. वो करना चाहता था, माफ कीजिए, जो वो स्वयं करना चाहता था वो था. That was what he wanted to do to show off God's glory. वो दिखाना चाहता था कि परमेश्वर की महिमा कैसी है. But what was the word God gave him? मगर परमेश्वर ने उसको क्या वचन दिया था? Did he say that you have to go through a whole process and only then I will send rain? क्या उसने कहा, परमेश्वर ने उसे कहा कि तुझको ये पूरा तामझाम करना पड़ेगा तब जाके मैं बारिश भेजूंगा? What did God say? परमेश्वर ने क्या कहा उससे? That you just go and show yourself to Elijah and I will send, you just go and show yourself to Ahab and I will send rain. कि तू जा अपने आप को अहाब के सामने प्रस्तुत कर और मैं बारिश भेजूंगा. In the process, Elijah said, I need to get rid of these false prophets and this Jezebel and all these other guys. That's why he made the process a little longer. But
all that God wanted him to do was to just go and stand before Ahab, and that revelation, because this man that was standing before Ahab was different, and that revelation was enough to break open heaven's doors over the nation. देख एलिया इन सारी बातों में ये करना चाहता था कि जो बाल के जो भविष्यवक्ता है वो उनको वहां से खत्म कर देना चाहता था, उसकी वेदियों को निकाल देना चाहता था। इसके लिए प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन परमेश्वर ने केवल इतना चाहा था कि वो जाकर अपने आप को अहाब के सामने प्रस्तुत करे। This morning I'm praying that your true identity will come forth. और आज की सुबह मेरी प्रार्थना यह है कि मसीह में आपकी जो पहचान है वो सामने आने पाए। That the true anointing upon your life will show forth. आपके जीवन के ऊपर जो सच्चा अभिषेक है वो निखर के बाहर आने पाए। The true bravery and courage that you are filled with, that it will come forth. आपके अंदर की असल हिम्मत, आपके अंदर का असल धाड़स जो है वो निकल के बाहर आने पाए। No more will this church, no more will anybody in this church be in bondage to fear. और इस कलीसिया का कोई भी व्यक्ति इसके आगे कभी भी भय के अधीनता में नहीं रहेगा। In Jesus' name I break that bondage of fear. और आज से यीशु मसीह के नाम में वो भय का जो बंधन है उसको मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के I नाम में। break that bondage of feeling worried about what people will think. और लोग क्या सोचेंगे इस बात की चिंता जो है वो चिंता आपके जीवन में नजर नहीं आने पाएगी। There is a level of confidence that comes from knowing who your God is and what your God is speaking about you, that you don't mind standing before any Ahab. और परमेश्वर को आप जानते हैं और अपने परमेश्वर को जानने के कारण जो आत्मविश्वास होता है वो आपके अंदर नजर आएगा और आप किसी भी आहाब के सामने खड़े रहने से डरेंगे नहीं। Come on, prophesy to yourself, show yourself to Ahab. Come on, अपने Show आप से yourself कहो to कि Ahab. अपने आप को आहाब के सामने प्रस्तुत करो। Show yourself to Ahab. अपने आप को आहाब के सामने प्रस्तुत करो। Stand before your Ahab. अपने आहाब के सामने खड़े रहो। So you should understand, Ahab is not the enemy. आपको ये जानना जरूरी है, समझना चाहिए कि आहाब आपका दुश्मन नहीं है। Ahab in this context is the man who single-handedly rules the nation. और अहाब अगर हम इस कहानी को ध्यान से देखें तो वो एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे राष्ट्र पर अकेला राज कर रहा है। And there are different forces that are influencing Ahab. और अलग अलग ताकतें हैं जो अहाब के ऊपर जो है नियंत्रण कर रही है। And there was certain seasons of Ahab's life when he understood the sovereignty of God and he in fact submitted to God's will. और अहाब के जीवन में ऐसा भी भाग था जहां अहाब ने परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने को समझा और अपने आप को उसने परमेश्वर के इच्छा के अधीन भी किया था। He said, all that I am and all that I have will belong to you, God. अहाब ने एक समय कहा था परमेश्वर से कि प्रभु जो सब कुछ मैं हूं और जो सब कुछ मेरा है सब तेरा ही तो है। This is a man who could be influenced. ये एक ऐसा व्यक्ति था जो आसानी से भरमाया जा सकता था। But the thing is, there was nobody who was taking up the place of influencing him in the correct way. लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उस स्थान में खड़ा रहे कि सही रीति से उसके ऊपर असर करे। Can I talk to you about another guy in this story? मैं इस कहानी के अंदर एक और व्यक्ति है उसके विषय में आपसे बात करता हूं। His name was Obadiah. उसका नाम था ओबदाया। Everybody say Obadiah. सब कहो ओबदाया। One more time, Obadiah. ओबदाया। This man is so good because during this season of famine, he took care of God's servants in the nation. और ओबदाया इस कहानी में जरूरी क्यों है? क्योंकि जब सब जगह अकाल पड़ा था तब ओबदाया ने परमेश्वर के दासों का देखभाल किया था। During the season when Jezebel was hunting God's servants, Obadiah, he protected God's servants and made sure that they are well fed. और जब इस मौसम में जेजबेल परमेश्वर के दासों को ढूंढ रही थी, मार रही थी, तब ओबदाया ने परमेश्वर के दासों को जो है एक गुफा में छुपा कर रखा, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया। Now Obadiah lived in the same palace that Ahab lived. ओबदाया भी उसी महल में रहता था जहां अहाब रहता था। Obadiah had direct access to Ahab. और ओबदाया जो था वो सीधे संपर्क में था अहाब के। And yet, whatever he did it in hiding. लेकिन जो कुछ ओबदाया ने परमेश्वर के दासों के लिए किया उसने छिपके और छिपा के किया। And there was another woman who was living in the same palace. और उसी महल में एक और स्त्री रहती थी।
Her name was Jezebel. उसका नाम जेजबेल था। You know what Jezebel used to do? आपको पता है जेजबेल क्या करती थी? The Bible says there were prophets of Baal that she used to feed. और जेजबेल जो है बाल के जो भविष्यवक्ता है उनको खिलाया करती थी। Just like Obadiah used to feed the prophets of God, here was a Jezebel who was feeding the prophets of Baal. जैसे ओबदाया परमेश्वर के दासों को खिलाया करता था, जेजबेल जो है वो बाल के भविष्यवक्ताओं को खिलाया करती थी। You know what was the difference between Jezebel and Obadiah? लेकिन इन दोनों में फर्क क्या था पता है आपको? Obadiah was too afraid to go and confront Ahab. और ओबदाया जो है उसके अंदर भय था, वो जाकर आहाब से सीधा सीधा बात नहीं कर रहा था। But Jezebel, she gave food to the prophets of Baal right on her table. और जेजबेल ने जो है पूरे बाल के जो भविष्यवक्ता थे उनको अपने मेज पर बिठाकर खुल्लम खुल्ला सबके सामने खाना खिलाया। He was too, this Obadiah, as much as he did a lot of good work, he was too afraid to go and confront Ahab. और ओबदाया जो है भले ही उसने कितना ही अच्छा काम किया, लेकिन उसके अंदर भय था और वो जाकर कभी भी आहाब से बात नहीं कर सका इस बात में। You will see even in this particular text when Obadiah meets the prophet Elijah, and Elijah says, "Why don't you bring Ahab to come and meet me?" Obadiah is like, "No, I don't want to take that risk." और अगर आप इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे, जब एलिया ओबदाया से मिलता है और कहता है कि तू सुन, जाकर तो आहाब से कह कि मैं आया हूं और उससे कह कि मुझसे आकर मिले, वो कहता है ना ना मैं नहीं करूंगा, ये इसमें बड़ा जोखिम का काम है। Here is God who has given an assignment to Elijah saying, "Go and show yourself to Ahab." यहां पर परमेश्वर ने आहाब को एक काम दिया कि वो जाए और अपने आप को आहाब के सामने प्रस्तुत करे। And yet, Elijah doesn't have direct access into the palace. Elijah knows Obadiah and Obadiah knows the king Ahab. और एलिया जो है उसको सीधा अंदर महल के अंदर जाने का रास्ता नहीं था, वो ओबदाया को जानता था और ओबदाया के द्वारा ही वो आहाब के सामने जा सकता था। And here is Obadiah who was placed by God in the palace, and he is standing as a hindrance to Elijah showing himself to the king of the nation. और ओबदाया जिसके पास परमेश्वर के पास जाने का सीधा मार्ग है, सीधा दरवाजा है, वो महल में होने के बावजूद भी एलिया के रास्ते का जो है रुकावट बन के खड़ा हुआ है। What do I say about Obadiah? मैं ओबदाया के विषय में अब क्या कहूं? Here is a man who had the capacity to influence King Ahab just like Jezebel was influencing King Ahab. यहां ओबदाया नाम का व्यक्ति है जिसके अंदर ये क्षमता है कि वो राजा आहाब के ऊपर वैसा ही असर करे जैसा जेजबेल कर रही है। And yet, because of his fear, he never showed himself to Ahab. लेकिन उसके अंदर के भय के कारण उसने कभी भी अपने आप को जाके आहाब के सामने प्रस्तुत नहीं किया। When he stood before Ahab, जब वो आहाब के सामने खड़ा हुआ, he was just a manager. वो सिर्फ एक मैनेजर के समान खड़ा हुआ। When he stood before Ahab, जब वो आहाब के सामने खड़ा हुआ, he was only an executive assistant. वो केवल एक असिस्टेंट के कैपेसिटी में खड़ा हुआ। When he stood before Ahab, जब वो आहाब के सामने खड़ा हुआ, he only became a general in the army. वो केवल सेना में एक सेनापति के समान खड़ा हुआ। He never took on the role of the man of God that he was. और उसने प्रभु का दास होने का जो उसका स्थान है, वो स्थान कभी भी नहीं लिया। He never took on the role as the man that is supposed to be feeding and taking care of the prophets of God. और उसने कभी भी अपना वो जो स्थान है जहां पर उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि परमेश्वर के लोगों को वो संभाले, खिलाए, उसे खुले तौर पर अपनाया नहीं। Who am I talking to this morning? आज की सुबह मैं किससे बात कर रहा हूं? I'm talking to a group of people whom the Lord is asking you to show yourself to और Ahab. आज मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जिनसे परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम्हें अपने आप को राजा आहाब के सामने प्रस्तुत करना है। You know that this Obadiah could have become the Mordecai of that palace. और आप जानते हैं कि ये जो ओबदाया है उस महल में मुर्दकाय के समान हो सकता था जैसा मुर्दकाय एस्तर के लिए था। This Obadiah could have been the Daniel of this palace. और ये जो ओबदाया है इस महल का दानियल बन सकता था। You know, I mean, come on. If we sit with Obadiah, we'll feel sad for him. We'll feel bad for him because
He was surrounded by a Jezebel, he was surrounded by an Ahab. और अगर आप ओबद्याह के साथ बैठकर उससे बातें करोगे तो शायद आपको उसके ऊपर तरस आएगा कि ये कितने बुरे परिस्थिति में है, इसके चारों ओर कौन है, और इसके चारों ओर आहाब है, जेजबेल है, बुरा लगेगा आपको उसके But लिए। here is a Daniel who served with Nebuchadnezzar. लेकिन यहाँ हम डैनियल को भी देखते हैं जिसका राजा नेबुकदनेस्सर था। Who is more fierce and more ferocious? अब मुझे बताओ, आहाब में और नेबुकदनेस्सर में सबसे ज्यादा डरावना कौन है? Come on, any Bible readers in this house? किसने बाइबल पढ़ा है? कौन ज्यादा डरावना है? Who did more worse things? किसने और ज्यादा बदतर चीजें करी हैं? And here is a Daniel who would stand up in the court of Nebuchadnezzar and say, no, this is what my God says, and this is the right way to do things, and this is how I will serve God. And God stands by Daniel and proves himself strong. और नेबुकदनेस्सर के महल में खड़े होने के बावजूद दानियल कहता है कि ना, चीजों को करने का सही तरीका ये है, परमेश्वर की मर्जी ये है, और मैं इससे अलावा हटके कुछ नहीं करूंगा। और उस परिस्थिति में परमेश्वर दानियल के साथ खड़ा रहता है। See, today when we look at it, we look at Daniel also as a prophet. देखिए, आज जब हम दानियल की ओर देखते हैं तो हम दानियल को भी एक भविष्यवक्ता की तरह देखते हैं। But back in those days, Daniel was not a prophet. लेकिन उन दिनों में दानियल कोई भविष्यवक्ता नहीं था। He was a secular businessman, politician in fact. वो एक पॉलिटिशियन था। Today we read the book of Daniel and we say, wow, what revelation, this has to be a prophet. और आज हम उसकी पुस्तक को पढ़ते हैं दानियल की, और हम कहते हैं क्या प्रकाशन इसको मिला है, ये जरूर कोई भविष्यवक्ता है। But back in the day, he was just a politician who was serving the will of his wicked master. लेकिन उसके दिनों में जब दानियल जिंदा था, वो किसी और राष्ट्र में एक बहुत ही जुल्मी राजा के नीचे एक पॉलिटिशियन की हैसियत से काम कर रहा था। His master was a dictator. उसका जो राजा था वो एक शासक था। He didn't fear God. वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था। He didn't submit to God. वो परमेश्वर के अधीन नहीं चलता था। He was dangerous. वो बहुत ही खतरनाक था। One word from his mouth and Daniel is burned to ashes. और उसके मुंह से निकलने वाला एक शब्द से ऐसा हो सकता था कि दानियल को जलाकर राख कर दिया जाता। And yet when Daniel stood before Nebuchadnezzar, he didn't stand as the manager that he was, he stood as the man of God that he was. लेकिन जब दानियल नेबुकदनेस्सर के सामने खड़ा हुआ, वो मैनेजर की हैसियत से नहीं खड़ा हुआ, वो परमेश्वर के दास की हैसियत से खड़ा हुआ। See, Daniel himself still needed to depend on the prophets of his day. देखिए, दानियल को भी उसके दिनों में जो भविष्यवक्ता परमेश्वर के जिंदा थे, उनके ऊपर निर्भर होना पड़ा था। He would spend time reading the prophecies of Jeremiah, the prophecies of Ezekiel during the days. और दानियल ने समय बिताया, पढ़ा, अध्ययन किया। उसने यिर्मयाह के जो भविष्यवाणियां थी, एजेकियल की जो भविष्यवाणियां थी, उनको पढ़ा, उनके ऊपर मनन किया। But here he's saying, I'm not going to, outsource the job of being a man of God to the prophets. I'm going to read, I'm going to understand what God is saying, and I'm going to be the man of God in the palace. और वो कहता है कि देखो, भले ही मैं यहाँ एक पॉलिटिशियन हूँ, मैनेजर हूँ, मगर मैं परमेश्वर के दास होने का जो ओहदा मुझे दिया गया है, वो मौका मैं किसी और को नहीं दूंगा। मैं मेरे राजा के सामने परमेश्वर के दास की हैसियत से खड़ा रहूंगा। Look at your neighbor and say, go show yourself to Ahab. अपने पड़ोसी को देखकर कहो, जाओ अपने आप को आहाब को दिखाओ। You cannot be in hiding anymore. आप छुप के नहीं रह सकते हैं। You cannot be silent anymore. तुम अब शांत नहीं रह सकते हो। You cannot be quiet anymore. आप अब खामोश नहीं रह सकते हो। If I die, I die. अगर मैं मर जाऊं तो मर जाऊं। If I perish, I perish. अगर मैं मर गया तो भी ठीक है। If I have to give up my job for the sake, it's okay. अगर मुझे इस बात के लिए अपनी नौकरी छोड़ देनी पड़े तो भी ठीक है। But I'm going to show myself to Ahab. लेकिन मैं अपने आप को आहाब के सामने लेकर जाऊंगा। See, Elijah was not debating with God saying, God, are you sure? देखिए, एलिया जो है वो परमेश्वर के साथ बहस नहीं कर रहा था। वो ये नहीं कह रहा था कि प्रभु आप श्योर हो ना, आपको पक्का मालूम है ना? You know what I have done to Ahab. आपको पता है ना मैंने आहाब के साथ क्या किया है? You know what prophecy I gave last time. आपको पता है ना मैंने उसको कौन सी भविष्यवाणी दी है? You know he didn't like the last prophecy. आपको पता है उसको पिछला जो भविष्यवाणी मैंने दिया उसको अच्छा नहीं लगा था। He didn't like the last time I invited him to church. पिछली बार में उसने कलीसिया में मुझे बुलाया था, उसको अच्छा नहीं लगा था। You're sending me to the same wicked Ahab. तुम फिर से प्रभु आप मुझे इसी बुरे राजा के सामने भेज रहे हो।
Here is Elijah. He did not question. और यहाँ आज हम देखते हैं एलिया ने सवाल नहीं किया, But look at Obadiah. लेकिन आप ओबदाया को देखो, He's trying to reason. वो अब जो है तर्क करने की कोशिश कर रहा He's है। trying to find the logic. Is there any logic in hearing what Elijah is saying? और वो जो है कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि जो एलिया कह रहा है वैसा करने में कोई लॉजिक है क्या, कोई समझ है क्या? You know, you come to church week after week, you hear the anointed word, and then you doubt whether it is practical in your place. देखिए, आप हफ्ते दर हफ्ते खलीसिया आते हो, परमेश्वर का अभिषेक वचन सुनते हो, उसके बाद घर जाकर आप ये सोचते हो कि या ये वचन करने में कोई लॉजिक बनता है क्या? Here is a man of God who has gone through hell and high waters to bring that word to you, and you are sitting and doubting if this is practical. और आपका परमेश्वर के दास आपके लिए उपवास करके पता नहीं कितने गहरे पानी के अंदर जाकर उसने ये वचन को आपके लिए पाया है, उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि क्या ये वचन करना मेरे लिए आसान से होगा क्या? Is there any Obadiahs in this house क्या today? इस घर में कोई ओबदाया है आज के दिन? God is saying, go and show yourself to Ahab. परमेश्वर कह रहा है, जाओ अपने आप को आहाब के सामने प्रस्तुत करो। When you stand up before your Ahab, जब तुम जाकर अपने आप को आहाब के सामने प्रस्तुत करोगे, it would not be needed for an Elijah to stand before Ahab. और जरूरी नहीं होगा कि एलिया को जाकर आहाब के सामने खड़ा रहना See, पड़ेगा। you should understand the protocol. आपको जो है प्रोटोकॉल समझना है। Can I have 5 people here? मुझे 5 लोग चाहिए यहाँ पे। Five people. Some of you will be wicked, some of you will be good people. Don't mind, okay? Okay, that's great. That's great. That's great. 5 लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग बुरे होंगे। Okay, you stand in the center. You look like Ahab today. Please don't mind. This is just for example, okay? ये सिर्फ एग्जाम्पल है। This is Elijah. वो कोने में एलिया है, And this is the man who is in connection with the prophets of God. He's Obadiah. और ये दूसरा व्यक्ति है वो ओबदाया है जो परमेश्वर के दासों के साथ संगति में है। And he also has access to Ahab. ये व्यक्ति ऐसा भी है जिसके पास आहाब के पास जाने का रास्ता है, मार्ग है। And here is Jezebel. Sorry. यहाँ पे जेसबेल है And she is feeding the prophets of Baal. और वो बाल के जो भविष्यवक्ता है उनको खाना खिला रही है। How many of you know that the prophets of Baal never directly interacted with Ahab? आप में से कितने लोग जानते हैं कि जो बाल के भविष्यवक्ता है वो डायरेक्टली जाकर आहाब से कभी बात नहीं किए? What did they do? उन्होंने क्या किया? They brainwashed Jezebel. उन्होंने जेजबेल के ऊपर नियंत्रण किया। They said, this is where we need to make another temple. और उन्होंने जाके जेजबेल से कहा कि हमें यहाँ एक नया मंदिर बनाना है। This is what we need to stop in the temple of God. और परमेश्वर के मंदिर के अंदर ये बातों को हमने रोकना है। What did Jezebel do? जेजबेल ने क्या किया? She went to the man who was controlling the entire nation of Israel. वो जाती है और उस व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण करने का कोशिश करती है जो पूरे राष्ट्र को नियंत्रण कर रहा है। She was not shy of who she is before Ahab. वो आहाब के सामने जाकर खुद को प्रस्तुत करने में उसको शर्म महसूस नहीं हुई। She is not shy of demonstrating the wickedness in all of Israel. इज़राइल के अंदर जो बुराई है उसको व्यक्त करने में उसको जो है शर्म महसूस नहीं हुई। But on the other hand, लेकिन दूसरे तरफ here is a man of God. यहां परमेश्वर का दास है। Not only is he hindering the prophets of God from going to Ahab, वो परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जो असली भविष्यवक्ता है उनको आहाब के पास जाने से केवल रोक नहीं रहा है। now Elijah has to take up his place and go directly to Ahab. अब एलिया को जो है उसकी जगह लेकर एहाब के पास जाना है। अगर वो जाता तो एलिया को जाने की जरूरत नहीं थी। Are you getting what I'm trying to say? आपको समझ में आ रहा है? Your pastor doesn't have to go pray for your boss. आपके पास्टर को आपके बॉस के लिए जाके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। Your pastor doesn't have to come pray for your neighbors. आपके पास्टर को आपके पड़ोसी के लिए आके प्रार्थना करने के लिए जरूरत नहीं है। Obadiah, when you live in silence, when you don't take your place, that is when the prophet has to intervene. ओबदाया, जब तू शांत रहेगा तब जाकर तेरे नबी को तेरी जगह लेनी पड़ेगी। God told this to Mordecai, said this to Esther, if you remain quiet, deliverance will come from somewhere else. और
मुर्दकाय ने एस्तर से कहा कि अगर तू शांत रहेगी तो परमेश्वर कहीं और से उद्धार को लेकर आएगा, But you will lose your place, Obadiah. मगर ओबदाया तू अपनी जगह को खो देगा। You are supposed to be a history maker in this position. तुझे जहां रखा गया है इतिहास रचने के लिए रखा गया है। You are meant to be a nation changer in this position. तुझे जहां रखा गया है तुझे क्षमता दी है कि तू एक राष्ट्र को बदले। You are underestimating who you can be by saying, I can only feed the prophets of God in hiding. अगर तू अपने आप के विषय में केवल यह सोचता है कि मैं सिर्फ छिपे हुए परमेश्वर के दासों को खाना खिला सकता हूं, तो तू अपने आप की गिनती कम कर रहा है। Today the Obadiahs have to take up the responsibility of becoming the men of God that they really are. और आज ओबदाया जितने हैं उनको परमेश्वर के दास होने की जो जगह है उसको लेना होगा। You know, if he would take up his place, अगर ओबदाया अपनी जगह को ले ले, Elijahs can mentor more Obadiahs. एलिया जो है वो और ओबदाया को सिखा सकते हैं। Please be seated. अब बैठ जाएं, I'll explain this to you. मैं आपको और सिखाता हूं। See, Elijah, he had a school of prophets. एलिया जो था वो एक स्कूल चलाता था जिसमें वो भविष्यवक्ताओं को प्रशिक्षित करता था, सिखाता था। He had one of his sons by the name Elisha who took over after him. और उसका अपना एक आत्मिक बेटा था जिसका नाम एलिशा है, जिसने उसके बाद सेवकाई को संभाला। If you should study the way that these prophets functioned. आपको जो है सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि किस तरह परमेश्वर के ये जो दास थे उन्होंने काम किया। The prophets didn't go searching for people to prophesy over. Whoever wanted a word from God, they came to the prophet. और नबी जो थे वो जाकर ढूंढते नहीं थे कि किसको मैं भविष्यवाणी करूं, जिसको भविष्यवाणी चाहिए वो नबी को ढूंढ के आते थे। They will come looking for him. वो उसको ढूंढता हुआ आते थे। And when they come looking for him, he will give a word from God. और जब वो उसको ढूंढता हुआ आएंगे तब वो परमेश्वर के पास जाएगा और वचन उनके लिए लेकर आएगा। There were times when Elisha even refused to meet people. और ऐसे समय भी थे जहां एलिशा ने कहा मुझे लोगों से मिलना भी नहीं है। When they come, he will send his servant and say, okay, go tell her this, your husband will not live, tell her his time is over. That's it, that the prophecy is done. लोग आते थे एलिशा से मिलने के लिए और एलिशा अपने नौकर को भेजता था कि जाके बोल उसको कि हाँ उसका पति अब जिंदा नहीं रहेगा, उसका टाइम खत्म हो गया, जा बोलते। वो बाहर मिलने भी नहीं जाता था उनसे। It was not Elijah's job to be exposed to an Ahab and a Jezebel. सुनो, एलिया का काम नहीं है कि वो अपने आप को एक आहाब के सामने, एक जेजबेल के सामने प्रस्तुत करे। Could it be that Obadiah could have brought down the fire on Mount Carmel? क्या ये संभव था कि ओबदाया भी जो है करमेल पर्वत के ऊपर आग लेकर आ सकता था? I'm just making you think today. मैं आज आपको सोचने पर विवश कर रहा हूं। By the way, I don't have a long sermon. That's just the one line that God gave me for you. मेरे पास कोई लंबा संदेश नहीं है, केवल परमेश्वर ने मुझे एक लाइन दिया है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। I have preached from 1 Kings chapter 18 a lot of times, and I have, if I just pull up my notes, there are a lot of revelations that I can preach from 1 Kings 18. और पहले राजा के 18वें अध्याय से मैंने बहुत बार प्रचार किया है। अगर मैं अपने नोट्स को निकालूं तो बहुत सारे प्रकाशन है जो मैं आपको दे सकता हूं। But the only thing God gave me for this church this morning is go show yourself to Ahab. और आज की सुबह परमेश्वर ने इस कलीसिया के लिए केवल मुझे एक वचन दिया कि जाकर अपने आप को आहाब को दिखाओ। That's why I'm stuck in verse 1. इसीलिए मैं केवल पहले ही वचन में अभी तक अटका हुआ हूं। That is why I'm trying to get you out of your comfort zone. इसीलिए मैं आपको आपके आराम की जगह से बाहर निकलने में जो है कोशिश कर रहा हूं। If you will take your rightful place, अगर आप अपना सही स्थान लेंगे, if you will man up, stand up, speak up, open up your heart and be willing to be the man that God has called you to be even outside the church. और अगर आप जो है अपने आत्मिक स्थान को लेंगे, अपने आत्मिक ओहदे को लेंगे और कलीसिया के बाहर भी परमेश्वर के उस दास या उस दासी के समान जिएंगे जैसा परमेश्वर ने आपके लिए तय किया है, then the work of Elijah will become very easy. तब एलिया जो है आपके जीवन में उसका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। Then they can raise more Obadiahs like you. तब
एलिया को ये मुक्तता मिलेगी कि वो ओबदाया जैसे और लोगों को तैयार कर सके. Then these prophets of God, they can hear from God, and they can do the thing that is necessary to change the spiritual atmosphere over the nation. और तब ये जो लोग तैयार किए जाएंगे, परमेश्वर उनका इस्तेमाल करेगा कि वो एक राष्ट्र के ऊपर का जो आत्मिक वातावरण है उसको बदले. See, in this case, there was needed for a fire to come before the rain will come. इस परिस्थिति में जरूरी था कि एक आग पहले स्वर्ग से नीचे आए, इससे पहले कि बारिश स्वर्ग से नीचे आए. Elijah's original plan was just to go and meet Ahab and tell him, "Here I am, rain is coming." एलिया का ओरिजिनल प्लान तो यही था कि वो अहाब के सामने जाकर खड़ा हो और ये कहे, देख भाई मैं आ गया हूं, अब बारिश भी आएगी. But on the way to meet Ahab, he met Obadiah. लेकिन रास्ते में उसकी ओबदाया से मुलाकात हुई. But when he met Obadiah, he met fear. जब उसने ओबदाया से मुलाकात की, उसने ओबदाया के भय से मुलाकात की. When he met Obadiah, he met all the shyness that this guy is carrying. और जब उसने ओबदाया से मुलाकात की, ओबदाया के अंदर की सारी शर्म से उसने मुलाकात की. He met all the false identities that Obadiah is carrying. और जब उसने ओबदाया से मुलाकात की, उसके अंदर की सारी जो झूठी पहचान उसने बना के रखी थी अपनी, उससे उसने मुलाकात की. All the double-sided personalities that Obadiah is carrying, he met him. उसका जो दोहरा व्यक्तित्व था, उसने उससे पहचान की. All the hypocrisy was encountered when Elijah met Obadiah. ओबदाया के अंदर का जो दोगलापन था, उससे उसने मुलाकात की. And that's why Elijah said, "Okay, change of plans, let's bring down some fire." और तब जाके एलिया ने अपना प्लान बदली किया. उसने कहा सिर्फ बारिश से कुछ नहीं होगा, पहले आग लेकर आते हैं. Let's first cleanse the ones that are standing in the way of the rain coming down. पहले हम उन लोगों को शुद्ध करते हैं जो इस बारिश के आने के लिए रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं. So you should understand that the pagan worshippers were always prevalent in and around the nation of Israel. देखिए, आपको एक बात जानना जरूरी है कि इजराइल राष्ट्र के चारों ओर जो है अन्य जाति के देवताओं को आराधना करने वाले बहुत सारे लोग थे. But at no point was a prophet ever threatened by them. लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर का कोई दास उन लोगों से भयभीत हुआ हो. See, it can happen that a nation and another nation can be at war with each other. देखिए, ऐसा हो सकता है कि दो राष्ट्रों के बीच में जो है लड़ाई हो रही हो या युद्ध हो रहा हो. But it cannot be that a prophet of God can be threatened by a prophet of Baal. लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परमेश्वर का असल में जो भविष्यवक्ता है वो बाल के भविष्यवक्ता से कभी भयभीत हो जाए. That's not possible. हो ही नहीं सकता. But there was something else that was giving power to the prophets of Baal. लेकिन कुछ और था जो बाल के नबी हैं, बाल के भविष्यवक्ता हैं, उनको बल दे रहा था. Was it Jezebel? क्या जेजेबेल उनको बल दे रही थी? Was it Ahab? क्या अहाब उनको बल दे रहा था? No, it was Obadiah. नहीं, ओबदाया उनको बल दे रहा था. His fear was feeding the prophets of Baal. ओबदाया का जो भय है उसके कारण बाल के भविष्यवक्ता मजबूत हो रहे थे. His doubt, his self-doubt was allowing the prophets of Baal to flourish in the nation. ओबदाया के अंदर खुद को लेकर जो शंका थी, शक था, उसके कारण जो झूठे भविष्यवक्ता है वो फल फूल रहे थे. See, on a regular day, Obadiah is a hero in this story. लेकिन सुनो, अगर आप ज्यादातर इस कहानी को पढ़ोगे तो ओबदाया जो है एक हीरो के समान नजर आता है, क्योंकि उसने लोगों को खिलाया पिलाया, संभाला. And many a times when somebody looks at you, they'll be like, "Man, what a great guy." और कई बार ऐसा होगा कि लोग आपको देखेंगे और कहेंगे, अरे क्या अच्छा आदमी है. कितना पैसा दिया चर्च को? You have no idea how many prophets he has taken in his house. आपको कोई पता नहीं कि कितने भविष्यवक्ताओं को उसने संभाला है. You have no idea what all he has, how much hard he has worked for God. तुमको पता नहीं कि उसने परमेश्वर के राज्य के लिए कितनी मेहनत की है. I don't want to know all the things that you managed to do for God. और मैं आपने जो कुछ परमेश्वर के लिए कर पाया है उन बातों में दिलचस्पी नहीं दे रहा हूं. I am asking you to show me your fullest potential in Christ. मैं आपसे ये चुनौती दे रहा हूं कि मुझे आपके अंदर मसीह का जो पूरा क्षमता है उस क्षमता में आप जी कर दिखाओ. See, the reason we can
expect more from Obadiah is because there were others who lived in the same position. सुनो, अगर आप ओबदाया से ज्यादा की अपेक्षा कर रहे हो, वो इसके लिए हो पा रहा है क्योंकि ओबदाया जैसे दूसरे थे जिन्होंने ओबदाया से ज्यादा काम किया. There was a Daniel, एक दानिएल था, there was a Joseph, एक यूसुफ था, there was a Nehemiah, एक नेहमाया था, there was a Mordecai, एक मोर्दकाय था, there was an Esther. एक एस्तर थी. There were so many people who served under wicked people and they still flourished under their wicked leaders. और ये सारे लोग जो थे उनके ऊपर भी बहुत जुल्मी शासक राजा थे, मगर इन्होंने उस जुल्मी राजा के अधीनता में काम करते हुए भी बहुत बढ़िया परमेश्वर के लिए काम किया. Just because they did not allow fear to have the final say. वो इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने भय को उनके ऊपर नियंत्रण लेने नहीं दिया. Because they were not confused about who they are. क्योंकि वो इस बात को लेकर जो है उलझन में नहीं थे कि वो असल में कौन है. There was one such word that came to Moses. मूसा के पास एक ऐसा ही वचन आया. God told him, go show yourself to Pharaoh. जाके परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने आप को फिरौन के सामने प्रस्तुत करो. See, the last time Pharaoh met him, he was still an Egyptian. देखो, जब परमेश्वर आखिरी बार मूसा से मिले थे या पिछली बार, तब भी वो मिस्र देश में ही था. He was still an Egyptian. वो मिस्र देश का ही नागरिक था. And now there was a season of hiding and there has been some transformation in his life. और अब उसके जीवन में एक छुपने का समय रहा है और उस छुपने के समय में परमेश्वर ने उसके चरित्र में काम किया है. Now he has had an encounter with God. अब उसका परमेश्वर के साथ एक मुलाकात हुआ है. Now when he goes and stands before Pharaoh, he's not standing as his servant, he's standing as the man of God Moses. और अब जब जाकर वो फिरौन के सामने खड़ा होता है तो वो एक नौकर के समान नहीं खड़ा होता, वो परमेश्वर के दास के समान फिरौन के सामने खड़ा होता है. That is why it didn't matter that Moses couldn't talk properly. और इसीलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि मूसा बोलने में हकलाता था. In fact, God didn't want Aaron to go. और परमेश्वर तो चाहता ही नहीं था कि हारून जाए उसके साथ में. The Bible says God got angry with Moses and said, okay, let's go with Aaron also. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर नाराज हुआ मूसा से और क्रोध में कहा कि ठीक है, तू नहीं बोलना चाहता तो चल हारून को लेके जा. In fact, God's original plan was that only Moses will just go and stand before Pharaoh. और परमेश्वर का जो ओरिजिनल प्लान तो यही था कि वो जाए और मूसा अकेला फिरौन के सामने खड़ा हो जाए. All this time Pharaoh has only met the servant Moses in the house, the daughter's son, one of the royal members, but now he's about to encounter the man of God Moses. Come on, अभी तक ऐसा हुआ कि फिरौन ने जब कभी मूसा को देखा तो उसको अपनी बेटी का बेटा नजर आया, उसको कई राजकीय पुत्रों में से एक पुत्र नजर आया, लेकिन अब जब जाकर मूसा फिरौन के सामने खड़ा होगा तो वो एक बेटे को नहीं, वो एक परमेश्वर के दास से मिलने वाला था. Some of you are afraid of your physical family, your parents. आप में से कई लोग, आप अपने शारीरिक जो आपका परिवार है, आपके माता पिता, उससे भयभीत हैं. You're afraid of what they will say, what they will force you to do, how they will push you around and control or manipulate your life. और आप डरते हैं इस बात से कि क्या वो सोचेंगे आपके बारे में, क्या कहेंगे आपसे, या वो आपको क्या करने पर विवश करेंगे, कैसे आपके जीवन पर कंट्रोल करेंगे. But today I want you to stir up the man of God, the woman of God on the inside of you. लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आपके अंदर का जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की दासी है, वो जागकर उठकर खड़ी हो जाए. Your spouse may not understand Jesus the same way you understand him. देखो, आपका जो पति है या पत्नी है वो शायद यीशु मसीह को उस तरह नहीं जानते जिस तरह आप उन्हें जानते हैं. But there is one encounter that Ahab can have with Elijah which can open up heavens over your home. लेकिन एलिया के साथ आहाब का एक मुलाकात ऐसा हो सकता है जो आपके घर के ऊपर जो स्वर्ग को खुला कर दे. Today we are going back to receive that rain. आज हम जाकर उस बारिश को पाने जा रहे हैं. And today we are preparing ourselves to show ourselves to our Ahabs. आज हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि अपने आप को अपने आहाब के सामने प्रस्तुत कर सकें.
Today we are allowing the Lord to do this deep work on the inside of us. आज हम परमेश्वर को ये अनुमति दे रहे हैं कि वो ये गहरा काम हमारे अंदर करने पाए, Because God has not given me a spirit of fear. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी है, He has not given me a spirit of bondage. उसने मुझे बंधुआई की आत्मा नहीं दी है, He has not given me a spirit of double-mindedness. उसने मुझे दोहरे मन की आत्मा नहीं दी है, He has not given me a spirit of instability. उसने मुझे अस्थिरता वाली आत्मा नहीं दी है, Oh, He has not filled me with a spirit of confusion. उसने मुझे उलझन की आत्मा No. से नहीं भरा है, नहीं, He has filled me with a spirit of courage and उसने power मुझे and self-control. सामर्थ और संयम और सामर्थ की आत्मा से उसने मुझे भरा है, And that is what will manifest in my life. और मेरे जीवन से यही बातें जाहिर होने वाली I हैं। will not let the enemy say what I should do and how I should behave. और मैं दुश्मन को ये मौका नहीं दूंगा कि वो मुझसे कहे कि मुझे कैसा बर्ताव करना है, कैसा जीना है। He cannot control how I talk to my Ahab. मैं मेरे आहाब से कैसे बात करूंगा, मेरा दुश्मन मुझे नहीं सिखाएगा। The Lord is commanding the church to go show yourself to Ahab. आज कलीसिया को परमेश्वर कह रहा है, जाओ और अपने आप को अपने आहाब के सामने प्रस्तुत करो। The Lord is speaking to ARH as a church to go and show yourself, present yourself to Ahab. और आज परमेश्वर ARH से कह रहा है कि जाओ, जाकर अपने आहाब के सामने खड़े हो जाओ। Your season of hiding is over. Your season of coming to the forefront in the battle is here. और आपके छुपने का समय खत्म हुआ है, इस युद्ध में आपका आगे आने का समय अब आ चुका है। This is a house that needs to train many Obadiahs. ये ऐसा घर है जिसने कई ओबदाया जैसे लोगों को तैयार करना है, And there are many Obadiahs who will go to many Ahabs and confront them. और कई ओबदाया निकलेंगे इस घर से जो कई आहाबों के सामने खड़े होंगे और उनसे बातें करेंगे। But together as a church, this church will stand before the Ahab of the city. लेकिन साथ मिलकर ये कलीसिया इस शहर के ओबदाया के सामने खड़ी होगी। I speak that elevation over this church. इस कलीसिया के ऊपर वो एलिवेशन, वो ऊंचा उठाए जाने का मैं घोषणा करता हूं। I declare, let there be a revelation of what this church carries in the spiritual atmosphere over this city. और इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर की जो बातें हैं, इस कलीसिया के ऊपर जो परमेश्वर का अभिषेक है, इस शहर के आत्मिक वातावरण में उसका नया प्रकाशन स्थापित हो। See, when we think of elevation, we normally do it in terms of, okay, there will be more churches, there will be more conferences, there will be more people. But the way that God is going to use ARH is going to be in a very unique way. Amen. People will come for the most unexpected of reasons. Most unadvertised meetings Amen. will draw people in. The Amen. most unorganized form, unorganized structures of gathering will draw people in to receive this rain that is coming out of ARH. Amen, amen, amen. In Jesus' amen. name, I declare that this church will host times of prayer, times of fasting. Amen. मैं इस बात And people will gather for that. People don't usually gather for fasting. लोग उपवास और प्रार्थना के लिए इकट्ठा नहीं होते, मगर मैं विश्वास करता हूं ये कलीसिया ऐसे मौसमों से जाएगी जहां वो उपवास और प्रार्थना करेगी और लोग उसके लिए इकट्ठा होंगे। That people will gather for the most unexpected ways, for the most unexpected doors, people will gather. और इस कलीसिया के कारण लोग ऐसी बातों के लिए इकट्ठा होंगे जो कलीसिया में ज्यादातर नजर नहीं आती। Go show yourself to Ahab. जाओ अपने आप को अपने आहाब के सामने The प्रस्तुत Lord करो। is saying this to the church. Go show yourself to Ahab. जाओ अपने आप को अपने आहाब के सामने प्रस्तुत करो, कलीसिया परमेश्वर कहता है। You know, the Bible says that when at the end of this story, Ahab, he went down to eat food. और बाइबल कहती है ये कहानी जहां खत्म होती है वहां पर आहाब जो है वो जाकर खाना खाने बैठता है। But here is Elijah. लेकिन यहाँ एलिया है, He goes up the mountain to pray. वो पर्वत के ऊपर जाता है प्रार्थना करने के He लिए, goes up to seek the face of God. वो जाता है परमेश्वर के मुख को खोजने के लिए। You know, when we think of showing ourselves to Ahab, we think, okay, I had a nice meeting with Ahab, work is done, job is done, let's go home, chill and watch Netflix and just have a good time together. और Yeah? हम जब एहाब से मिलने की बात करते हैं हमको ऐसा लगता है चलो एहाब से मिल गए, बात भी कर दी, बारिश भी होने वाली है, वो अपने घर जाए, मैं जाऊंगा घर आराम कर लूंगा। मगर
मगर एलिया ने वैसा नहीं किया। See, in fact, all the prophetic word that Ahab had to receive, he's already received. आहाब को जितना भविष्यवाणी मिलना था वो ऑलरेडी मिल चुका था। Elijah had already told him that the rain is coming and everything, all the things that to be done, it is already done. एलिया ने उसको पहले ही बोल दिया कि बारिश होने वाली है, तो मुझसे आगे चला जा, जा बारिश होने से पहले चला जा, सब कुछ जो बोलना था सब बोल दिया। But this man to whom God had commanded, go show yourself to Ahab, he didn't rest. और ये व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने भेजा कि जा अपने आप को आहाब के सामने प्रस्तुत कर, उसने अपना काम पूरा करने के बाद आराम नहीं किया। Can I give you an instruction in the spirit this morning? क्या मैं आपको आत्मिक रीति से आज एक निर्देश दे सकता हूं? Delay your time of rest. आपका जो आराम का समय है ना, उसको थोड़ा और दूर ढकेल दो। When the Lord gives you victory, it's time for more prayer. जब परमेश्वर आपको विजेता देता है तो समय होता है और प्रार्थना करने का। You know, my father on the other night, he declared that 2022 is going to be a year of prayer for the church in India. Amen. मेरे पिता ने पिछले दिन जो है ये घोषणा करी कि 2022 साल जो है भारत देश के लिए प्रार्थना का साल होगा। Because we are together going to unseat the Ahabs in our nation. और हम साथ मिलकर आहाब जैसे लोगों को उनके गद्दी पर से हटाने वाले हैं इस राष्ट्र में। Amen. We are going to take on powers that should not be ruling our nation. और हम ऐसे सामर्थ्यों को उनके कुर्सी पर से निकालेंगे जिन्होंने हमारे राज पर देश पर गलत राज किया है। But the Lord is saying it's not time for you to rest. लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि ये समय नहीं है कि तुम आराम करो। After your testimonies come, don't go and chill. आपका जो है टेस्टिमनीज आ जाने के बाद आप जाकर आराम नहीं करो। When the miracles happen, don't go and sleep. जब आपके चमत्कार हो रहे हो तब जाकर आप आराम न करो। When this church multiplies, don't take a break. जब ये कलीसिया बहुगुणित होने लगे तब ब्रेक मत ले लेना। When the Lord begins to bless your finances, don't slow down. जब परमेश्वर आपको आर्थिक बातों में विजेता दे तब आप थक कर रुक नहीं जाना। Because a man and a woman who is on the mission to show himself to Ahab, he never comes down. क्योंकि एक स्त्री एक पुरुष जो अपने आप को आहाब के सामने प्रस्तुत करने के कार्य को लेकर चल रहा है वो कभी रुकेगा नहीं, हारेगा नहीं। Do you know that it was his prayer on the mountain that allowed him, that gave him the grace to now run ahead of the chariot of Ahab? क्या आपको पता है कि उसने जो पर्वत पर जाके प्रार्थना की, उस प्रार्थना के कारण उसको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि आहाब का जो रथ पहले ही आगे बढ़ गया था वो दौड़कर उससे आगे चला जा सके। So you should understand, Ahab needed a chariot to get from point A to point B. सुनो, आहाब को अगर एक रथ की जरूरत थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह बैठकर उसमें जाए। Who among the two ate food? दोनों में से खाना किसने खाया? Elijah ate food or Ahab ate food? एलिया ने खाना खाया कि आहाब ने खाना खाया? Come on, it's in the Bible. चलो, किसने खाना खाया? आहाब ने खाना खाया। Who should have more strength? किसके अंदर ज्यादा ताकत होनी चाहिए? Acha, who among the two climbed the mountain? दोनों में से पहाड़ कौन चढ़ा? Ahab climbed the mountain or Elijah climbed the mountain? एलिया पहाड़ चढ़ा। Who should be more tired? कौन ज्यादा थका हुआ होना चाहिए? Who should be more exhausted? कौन ज्यादा थका हुआ होना चाहिए? Come on, church. This is not a time to give in to exhaustion. ये वो समय नहीं है कि हम अपनी थकान के अधीन हो जाएं। Today the Lord is releasing supernatural strength. आज परमेश्वर अलौकिक बल को मुक्त करता है आपके Will you जीवन में। stand with me for a quick minute and let's pray together? आप मेरे साथ एक क्षण के लिए खड़े हो जाए और हम प्रार्थना करने जा The रहे हैं। Lord is releasing strength in the midst of your weakness. परमेश्वर आपके कमजोरी के बीच में आज बल मुक्त करता है। The Lord is releasing courage in the midst of your fear. परमेश्वर आपके डर के बीच में अब हिम्मत को आपके ऊपर मुक्त करता The है। Lord is releasing His abundant provision in the midst of your lack. परमेश्वर आपके कमी के बीच में उसकी बहुतायकी को मुक्त करता है आपके जीवन के Elijah, ऊपर। it doesn't matter what you have been through. एलिया, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तू किन बातों से होकर गुजरा है। Everything that you saw and you experienced prepared you to stand before this हर Elijah, चीज before this Ahab. हर चीज जिससे तू होकर गुजरा है वो तुझे बल दी है कि तू इस आहाब के सामने जाकर खड़ा हो It जाए। has anointed you to stand before this Ahab. इस बात ने ही
ही तुझे अभिषेक किया है कि तू अब जाकर आहाब के सामने खड़ा हो. And this morning there is a cloud of God's glory in this place. और आज की सुबह परमेश्वर की महिमा का बादल इस स्थान के ऊपर है. And the same cloud that strengthened Moses for 40 days and 40 nights. और वही बादल जिसने 40 दिन और 40 रात तक मूसा को बल दिया. The same cloud that became the food and water for Moses on the mountain. और वही बादल जो 40 दिन तक 40 रात तक मूसा के लिए पानी और खाना बना. The same cloud that became the rest that Moses needed for 40 days and 40 और nights. वही बादल जो मूसा के लिए आराम का कारण बना उन 40 दिन 40 रातों में. That cloud is here this morning. वो बादल आज यहाँ पर है. And in that cloud is the provision for your food, the provision for your drinks, the provision for your health, the provision for your rest, the provision for your relationships. Everything is there in that cloud. और उस बादल के अंदर आपकी जरूरत का सारा सामान है. आपके आर्थिक जरूरतों का, शारीरिक जरूरतों का, आपके रिश्तों का, आपके आत्मिक जीवन का हर जरूरत उस बादल के अंदर पूरा होना है. Somebody has to tap into that cloud आज today. किसी ने उस बादल को छू लेना है. Somebody has to say, I am no longer going to be hidden. और किसी ने ये कहना है कि मैं अब छुपा हुआ नहीं रहूंगा. I am not going to live in this fear anymore. मैं इस भय में अब जिंदा नहीं रहूंगा. I am not going to be intimidated anymore. मैं और डरा हुआ नहीं रहूंगा. I am not going to be pressed down anymore. मैं और गिराया नहीं जाऊंगा. Yes. क्षमा प्रार्थना करें. Rikamando robo kore रोबो बोबो. अपनी आवाजों को उठाकर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे. Don't look at me. मेरी ओर ना देखें. You have the anointing inside of you. तुम्हारे अंदर अभिषेक पहले से है. Don't pray. Don't expect me to pray for you. मैं आकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा ये अपेक्षा भी ना करें. The cloud of God is already over your life. परमेश्वर का बादल आपके जीवन पर पहले से ही उतर आया है. It is your job to jump into that fire. अब आपका काम है कि आप उस आग में कूद जाएं. Let that fire take away everything that is not required. और अब वो आग जो है आकर उस बात को जला दे जो आपके जीवन में जिन बातों की जरूरत नहीं है. Lamando rabo kore rebelege. शाचा चाचा करो तो शाचा के बाबा शाचो तो रोबो. Rebi lamando robo siki dilere. सेचेरे रे रिया चाचा रबो शखला बासिया Yamana चाचा. mashidi ramandeneme. बे बासिया चो तो रोबो शाचे चे रे बाबा नी अंतंदा करो बो शाचे ले रे बे बासिया चो तो रोबो. Mashiki dirala mana mana mandenegere. Daraboro robo sere bere bere be. Mighty man of valor. ओ शूरवीर सुरमा, Where are you hiding? कहाँ छुपा हुआ है? Oh my Gideon, what are you doing here? मेरे गिदोन, तू वहाँ छुपा हुआ क्या कर रहा है? Do you know what you are capable of? क्या तुझे पता है तेरे अंदर मैंने कितनी क्षमता भर रखी है? Do you know the anointing that you have? क्या तुझे पता है कि कैसा अभिषेक तेरे ऊपर उंडेला गया है? Why are you hiding? तू क्यों छिपा हुआ है? Go in the strength that you have. जो बल तुझे दिया गया है उस बल में तू आगे जा. Go in the strength that you have. जो बल तुझे दिया गया है उस बल में तू आगे जा. Go stand before your enemy. जा अपने दुश्मन के सामने खड़ा हो. Go hear what he is saying. जा सुन तेरा दुश्मन क्या कहता है. Reveal yourself. अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत कर. That's all that it takes सिर्फ उतने की ही जरूरत है for the rain to come. कि वो बरसात आ जाए. I'm just going to read verse 1 one more time. मैं एक और बार पहले वचन को पढ़ना चाहता हूं. After many days, the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, Go, show yourself to Ahab, and I will send rain upon the earth. बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा. जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और भूमि पर मैं मेह बरसाऊंगा. Are you ready for the rain? क्या आप बारिश के लिए तैयार हो कलीसिया?
Are you ready for the rain that He wants to send this week? क्या आप तैयार हो उस बारिश के लिए जो परमेश्वर भेजने जा रहा है? This week, इस हफ्ते, this season, इस मौसम में there is going to be an abundance of rain. बहुत बहुतायकी से बारिश होने जा रही है। Are you ready to receive that क्या आप rain? तैयार हैं उसे पाने के लिए? Are you ready to jump in that rain? क्या आप उस बारिश में कूदने के लिए तैयार हैं? Are you ready to shower in that rain? क्या आप उस बारिश में नहाने के लिए तैयार हैं? Are you ready to harvest in that rain? क्या आप उस बारिश में एक फसल को काटने के लिए तैयार हैं? Are you ready to reproduce in that rain? क्या उस बारिश में अपने ही जैसे को और पैदा करने के लिए आप तैयार हैं? It is coming, says the Lord. ये होने जा रहा है, आमेन। It is here, says the Lord. अब ये होने जा रहा है, आमेन। It is time for the harvest, says the Lord. ये समय है फसल काटने का, It's time. समय है। Father, we just thank you for this word. पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। We know that your word is precious. हम जानते हैं तेरा वचन कीमती है। We value your voice more than anything else. किसी और चीज से ज्यादा हम तेरे आवाज को कीमती समझते हैं। Help us to not question your voice. हमें आपकी आवाज पर शक करने न दे परमेश्वर। Help us to not doubt your word. आपके वचन पर हम कभी भी शंका न करें। Help us to submit to your voice. आपके वचन, आपके आवाज के हम अधीनता में चलें। This morning, as a church, we submit to this voice. आज की सुबह एक कलीसिया होने के नाते इस आवाज के अधीनता में हम आते हैं। This morning, as children of God, I submit, each of us, we submit to this word. और आज की सुबह परमेश्वर के संतान होने के नाते इस वचन के अधीनता में हम आते हैं। We thank you for the rain that you are sending over this house. हम धन्यवाद करते हैं उस बरसात के लिए जो इस घर के ऊपर आप भेजने जा रहे हो। आमीन। We thank you for the rain that you are sending on each and every one of us हम धन्यवाद personally. करते हैं परमेश्वर हर एक के जीवन पर व्यक्तिगत जो बारिश आज भेजने वाले हैं उस बात के लिए। We thank you for the rain you are sending over the children of this house. इस घर के जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो आप बरसात भेजने वाले हो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। We thank you for the prophetic gift that is released upon the children of this house. हम धन्यवाद करते हैं तेरे नबूवत का वरदान जो इस घर के बच्चों के ऊपर मुक्त किया गया है उसके लिए। Lord, we thank you for the grace of healing that small boys and girls are going to walk in. और परमेश्वर इस घर के जो बच्चे बच्चियां हैं वो अभिषेक, जो चंगाई का अभिषेक है उसमें चलने वाले हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for the rain of testimonies that are coming in the days to परमेश्वर come. गवाहियों का बरसात जो यहाँ होने वाला है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। We celebrate the goodness of God for our church. हम परमेश्वर आपकी भलाई को उत्सव मनाते हैं। We give you all the praise. हम आपको सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हमने प्रार्थना की है। And everybody said an amen. सबने जोर से कहा आमेन। आइए हम प्रभु का स्तुति करें। Come on, just lift up our voices and thank the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Can I finish with this? You know, when the rain comes, जब बारिश होती है nobody knows why. किसी को पता नहीं कैसे, क्यों, But there was a Elijah who had to pay the price for that rain to come. पर एक एलिया था जिसको पता था कि उसने क्या कीमत चुकाई है। There was an Elijah who had to go into a crazy season of hiding and a crazy season of taking risks for that rain to come. एक एलिया था जिसको एक छुपने के समय से गुजरना पड़ा, बहुत जोखिम उठाना पड़ा ताकि वो बरसात आए। So when you experience your rain, जब आप अपने बरसात का अनुभव करो, will you go locate your Elijah? तब जाकर क्या तुम अपने एलिया को खोजोगे? And will you bless him? क्या तुम जाकर अपने एलिया को आशीषित करोगे? Will you stand with your Elijah? क्या तुम जाकर अपने एलिया के संग खड़े रहोगे? Will you say, okay, let's do more exploits like this? क्या तुम जाकर ये कहोगे चलो ऐसे ही बड़े बड़े काम और करते हैं? We've taken dominion in Mumbai. Let's take over Pune. हमने मुंबई के ऊपर शासन किया है, चलो अब पूना के ऊपर कब्जा करते Let's हैं। take over India. आए हम भारत देश के ऊपर कब्जा करते हैं। Let's take over UAE. हम UAE के ऊपर कब्जा करेंगे। Will you be a grateful church?
क्या आप एक धन्यवादित कलीसिया बनोगे? Will you be a church that knows how to honor your prophets? क्या आप एक ऐसी कलीसिया बनोगे जो जानते हैं कि आपके जो भविष्यवक्ता हैं, नबी हैं, उनका आदर कैसे करना है? It shall not be said about ARH that the prophet is not honored in his own house. ARH के विषय में ये नहीं कहा जाएगा कि उनका नबी उन्हीं के घर में आदर नहीं पाता। In this house, the prophets will be honored. इस घर में यहाँ के नबी आशीषित होंगे, आदर पाएंगे। आमेन। In this house, we will help them. We will make it easy for them to pay the price. इस घर में हम सारी कोशिशें करेंगे कि हमारा एलिया जो है वो उसकी कीमतों को आराम से, आसानी से चुका सके। Amen. आमेन। Pastor, I'm sorry I didn't go more into 1 Kings 18, but that's all that God gave me for today. And I know for a fact that you know there are many times when I know that okay, I'm not sure I did a good job in hearing from God, and you know sometimes as men of God, you know I have to admit sometimes I have preached from experience. But this morning that was not how it was. I can tell you this. Yes. I've never preached from 1 Kings 18 verse 1. That was the one word I heard from God. And I'm telling the Lord, saying, you know, all the way from home till here, I said, God, you know, if this gets over in 10 minutes, can I touch this also? Can I give this revelation about, you know, fire coming down? Can I talk about so many other things? But God said, no, just this is it. This is the message. Go show yourself to Ahab. Amen. जाओ अपने आप को आहाब के सामने प्रस्तुत करो। केवल इतना ही परमेश्वर ने मुझे अनुमति दी कि मैं आपको आके सिखाऊं, बताऊं। और बहुत कुछ था जो मैं परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु ये भी सिखाऊं क्या, ये भी और बताऊं क्या? प्रभु कहता है नहीं, केवल इतना ही काफी है। This is all that you needed this morning. आज की सुबह आपको केवल इसी बात की जरूरत थी। We'll continue to see you in the cloud services. हम आप सभी को क्लाउड की मीटिंग्स में देखते रहेंगे। And I'm happy to hear about the every night prayer. It's still continuing, right? Yes. And I'm so excited to hear about that. और आप हर दिन मिल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस बात को लेकर भी हम बहुत बहुत उत्साहित हैं। Because the Bible says, in spite of the victory, Elijah climbed the mountain to pray. क्योंकि बाइबल कहती है कि विजेता के बावजूद एलिया जो है पर्वत के ऊपर गया और उसने प्रार्थना की। In spite of an anointed service, we have to go back into prayer. और एक बहुत ही अभिषेक सभा हुई है, इसके बावजूद हमने जाके और प्रार्थना करनी है। Amen. आमेन। This is not the time to rest. ये आराम का समय नहीं है This प्यारो। is not the time to slow down. ये रुकने का समय नहीं है प्यारो। This is the time to ride the wave and go into the next level. ये वो समय है कि जो लहर आ रही है, हम लहर के ऊपर चढ़ के और आगे की तरफ जाएं। Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's appreciate the man of God this morning. Come on, church, we can do better.